और फिलहाल कमेंटेटर बॉक्स में तब्दीली आई अंजुम चोपड़ा और अतुल वासन। शुक्रिया अजय। आई थिंक तब्दीली बंगाल टाइगर्स भी चाहती होगी, क्योंकि आपने और रोहन ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी बंगाल की इतनी सारी विकेट्स गिरवाने में। सो यकीनन वो चाहेंगे कि थोड़ा सा बदलाव हो बल्लेबाजी क्रम के अंदर, थोड़ा सा बदलाव हो स्कोर के अंदर, और कम से कम 15-20 रन और जरूर बनाए कि थोड़ा बहुत कंपेटिटिव टोटल हो। उनके गेंदबाजों को कम से कम मैच डिफेंड करने के लिए हल्का सा एक विफ जरूर रहे। बट अखिल बहुत खुश, उनकी टीम के गेंदबाजों से, फील्डर से बहुत ज्यादा प्रभावित। बट बाउंड्री लाइन के करीब गेलन है, चलिए उनके पास वापस चलते हैं। Well, with me is one of the most loved directors and producers of the Telugu film industry. He needs no introduction whatsoever. We have with us Mr. Suresh Babu. Sir, you've been so closely associated with the Telugu Warriors. We can see your supporters all over the place, and of course the supporters of the Telugu Warriors as well. I'm going to ask you to think ahead of time now and tell me, do you think you see the Telugu Warriors in the finals? We wish that they're going to be in the finals. They'll do well. Definitely. Semi-finals though, we're sure. We'll try and make it there. I like that you're being a little humble about it. You're saying semi-finals though, sure, but we'll see. Well to get there. Absolutely. Well, you guys have started off to a great start. If you had to put your money on any one player out there, which one would it be? Akil will do well. Why is it so? Trained, focused. He wants to do well and he'll do well. Sir, you've been very closely associated with the Telugu Warriors, and this time around they have a new mentor in Sir Dilip. So what do you think they're going to bring to the table this time around with him being the mentor and him coming in with so much experience? See, he'll cool them off when things are not going right. The experience that he brings from his test cricket, slowly it'll all pass him. And that maturity will get into these actors also. And if there's one last thing you'd like to say to all the fans of Telugu Warriors and of course of your films, what would that be? To my films, let them all watch it. See, they're playing good cricket. We should all enjoy this game. Just be relaxed, play it well, and then it'll be a nice tournament to have. Not only the fans, the players, everyone should just enjoy this whole tournament. Thank you so very much, sir, for joining us. It's over to the commentary. Thank you, Galen. बहुत बढ़िया ओवर फिर से करता हुआ, और थोड़ी सी एक कैजुअल क्रिकेट पीछे देखिए। ओवर थ्रोज जबरदस्ती की आजकल जो फैशन है उसको थोड़ा सा अर्ज को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए 16 ओवर की समाप्ति पे इस समय अब बंगाल 112 पीछे। So this is the batting card. Bengal Tigers just faltering a bit now. They were going great guns about 3 overs ago. And Sachin Joshi has just put the spanners in the work. 2 विकेट एक ही साथ ले लिए 2 ओवर में। ओह, रोक ली बॉल। मुश्किल होती है ऐसी ऑड बाउंस का टप्पा जब आपके सामने गिर जाए, पर लकी रहे कि टांग पे लग गई। यहां से मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। विकेट्स ले लिए हैं, पर doesn't mean much because still they've got 4 wickets. और एक खिलाड़ी के भी अगर 2-3 हिट लग गए तो ये 150 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही कहा। They don't really mean much because T20 का खेल जो है वो सिर्फ रन्स बनाने का खेल है। तो चाहे आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बनाए या निचले, आपको रन्स बनाने हैं, और जैसे तैसे भी अपना जो टोटल है उस तरीके तक या उस जगह तक लेके जाना है जो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सके।
ऐसा लगता है सैंडी थोड़े से पहले ही ऑ में हैं अखिल की गेंदबाजी के, लग रहा है उन्हें शायद शॉर्ट पिच गेंदबाजी ना करें, वो मिस कर गए ये फुल टॉस को। बिग ब्रदर फाउंडेशन 1000 रुपए हर रन पे, तो 2-3 छक्के जरूर इस फाउंडेशन से और निकालने पड़ेंगे 100 हार्ट्स फाउंडेशन के लिए। Every run scored in CCL will get 1000 rupees from Big Brother Foundation. आई थिंक कंपल्शन कर देना चाहिए हर टीम के लिए कि क्योंकि हम बिग ब्रदर फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और एक अच्छे सोशल कॉज के साथ जुड़ रहे हैं, सो हर टीम के लिए एक पार स्कोर कर देना चाहिए। इतने पार स्कोर पे आप रन बनाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा। इतनी सख्त कठोर मत बनिए अंजुम। ये मेरे कान में ऐसी एक बात आ रही है कि विमेन आर लाइक दैट। ये गलत बात है। विमेन आर डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट हम सोच तो रहे हैं एक अच्छे कॉज के लिए जिसके साथ सभी जुड़ रहे हैं और पूरा सीसीएल जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक वी नीड टू बी लिटिल मोर लीनियंट एंड से increase the number of runs that you score so that you can increase the number of contribution. दोनों बातें करती इस समय, लीनियंस भी मांग ली और ऐसा क्यों करती हैं औरतें, हर चीज को डिफिकल्ट क्यों करती हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। हर चीज का समझने का बीड़ा थोड़ी उठाया अतुल आपने। कुछ चीजें कंफ्यूजन में छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, पर इस समय कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, हर बॉल पे उड़ाना पड़ेगा। अब 4 विकेट आपके पास हैं, 3 ओवर इस गेंद के पास आपके पास हैं, तो हर अगर खिलाड़ी भी 2-2 हिट लगा के आउट होता रहे तो फिर भी बोनस है। 150 के पास पहुंचने का बहुत बढ़िया मौका, और 150 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है मुझे लगता है इस पिच पे, इतनी आसान पिच नहीं है। और बहुत बढ़िया गेंद बिल्कुल लाइन पे, और पीछे रह गए, आगे आए नहीं बॉल की तरफ, तो नहीं मिलेगा मौका। 17 ओवर के बाद 117 पे 6। Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 Cookies. Supporting the Big Brother Foundation and the 100 Hearts Initiative. The CCL Season 5. इसे कहते हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना। और नीचा रहा अंजुम, तो यही बात मैं कर रहा था, ये बिल्कुल सपाट बेल्टर विकेट नहीं है, इसमें सवाल पूछता रहेगा गेंदबाज। तो ऐसा स्कोर तो जरूर बनाए जो कि थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टारगेट रहे। या 7 रन 8 रन प्रति ओवर बनाना इतना आसान नहीं जितना कल हमने देखा मुंबई की पिच पे। Hundred Hearts Initiative, Hriday, Cure a Little Heart Foundation, curing lives and contributing to the underprivileged children's treatment for pediatric heart diseases. Brilliant fielding out there. बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी कोशिश। आसान नहीं है यहाँ पर फील्डिंग करना, ये मैदान बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बट अच्छा एफर्ट यहाँ करते हुए गेंदबाज से अपलॉड मिलता हुआ, और जो हमारे बल्लेबाज हैं वो भी टेस्ट करते हुए अपने फील्डर्स को। बाहर निकल आए थे, फिर देखा ओ दूसरे एंड पे कोशिश करी, बट इट्स ऑल इन फन। व्हाट अ शॉट, क्या जवाब है, क्या गोडा टेक के इसे काउ कॉर्नर शॉट बना दिया सैंडी ने। दम तो है काफी, इंतजार में थे कि उनके खेमे में, उनके पाले में कोई टप्पा दे तो सही। उनके रडार में जब बॉल आई है तो इसी शॉट की इंतजार में थे। अखिल की गेंदें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बॉल के करीब नहीं जाना चाह रहे थे। मैक्सिमम 6 रन, बहुत क्लियरली बाउंड्री के पार। हालांकि
कोशिश, अगर शायद बाउंड्री लॉप्स के पास होते तो शायद कैच पकड़ने में कामयाब रहते, बट क्योंकि 3-4 यार्ड अंदर थे फील्डर, वहां पे कोई मौका नहीं। और ऐसे और लंबे छक्के लगाने की जरूरत बंगाल टाइगर्स को। ये एक और बॉल थी, बट सिंगल लेना चाहते थे, मुझे लगा पहले ही प्री डिटरमिन्ड थे। दौड़ना मुझे लगता अच्छा लगता नहीं सैंडी को, इंतजार कर रहे हैं उनके जो स्पेशल एरिया है उसकी, बैकफुट से ज्यादा पसंद नहीं करते शॉट लगाते हैं। एक गेंद है तो मुझे तो लगता है कि सिंगल के लिए मत जाएं, बड़ा शॉट खेलें, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवर पड़े हैं, सिर्फ 12 गेंदें। सैंडी सेट है, बाकी खिलाड़ी आके भी साथ दे सकते हैं, बॉल वेस्ट करनी बिल्कुल नहीं, एक ही रन मिल पाएगा। तो चलिए 128, 6 विकेट पे 18 ओवर के बाद। Triple X Energy drink CCL powered by Parle 2020 cookies, और डाउन द लेग साइड गेंद जो सबको मिस करती हुई चली गई, सिर्फ बाउंड्री के पार जाके रुकी है। वेरी कैजुअल क्रिकेट आई मस्ट से। अखिल अच्छे गेंदबाज हैं, पता नहीं क्या यॉर्कर की ट्राई के कोशिश में ये जबरदस्ती के 5 रन चले गए, और विकेट कीपर ने भी कोशिश नहीं की रोकने की। देखिए विकेट कीपर को लगा कि ऑफ स्टंप से बाहर और लेट हो गए दूर दूर से, और ये एक मौका ये मिला, दूसरा मौका ये रहा, तो 3 मौके थे ये बाउंड्री रोकने के। एक और वाइड, ये है मेल्ट डाउन मोमेंट, संभल के खेलना पड़ेगा। ये जो क्रूशियल रन है, और जब लो स्कोरिंग मैच रहता है तो विनिंग मार्जिन लूजिंग मार्जिन भी बहुत कम रहता है। इस समय अगर अखिल के दिमाग के अंदर घुस के चेक किया जाए कि वो क्या सोच रहे थे पहली गेंद डालने के बाद, तो लगेगा शायद यॉर्कर डालना चाहते थे, और क्योंकि वो 5 रन चले गए तो चलिए दूसरी साइड डाल देते हैं। वेरी वेरी casual cricket, very very basic mistake that any player can actually make. Yeah, it's been very expensive today. He's just bowled 3.1 overs, 37 runs he's gone for, so almost 12 runs per over is average, and only 4 dot balls in that. He's picked up a wicket, important wicket that too. Oh, बहुत जबरदस्त शॉट, ये है उनका रडार। सैंडी का फेवरेट एरिया है फ्रंट फुट से अपने पूरी बॉडी का मोमेंटम लेके शॉट लगाना, और इसी लेंथ की इंतजार में थे, जानते थे कि प्रेशर है 2 वाइड बॉल डालने के बाद। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जानते थे कि सामने की तरफ ही गेंद डालने वाली है, इसी वजह से तैयार थे। हल्का सा शिमी किया डाउन द ट्रैक, और सबसे अच्छी बात कि सीधे बल्ले से खेला, टेढ़े खेलते तो आउट हो सकते थे। कोशिश वही थी, रडार वही था, पर इस बार पहले ही शॉट खेल लिया, गेंद पहुंची नहीं थी। गुड कमबैक, जेन्युइन डिलीवरी है ये। अब थोड़ी शांति है सपोर्टर्स में, क्योंकि मैच अब बन चुका है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे। और एक और स्ट्रेट शॉट, पर ठीक है, पैर से रोक लिया, तो वैसे भी एक ही रन होता है यहाँ पे। एक एक गेंद, एक एक रन बहुत कीमती इस समय। Anything saved is an run earned. कोच की भी देखिए समझा रहे हैं, शांति भाई, वो मारेगा। These tense moments are the best moments in the game of cricket. छोटी गेंद घुमा के मारा है। I will be unhappy if they don't come back for a second. Fortunately, they did come back. But generally fielding has been very good, I must say. जो considering the ground और जो outfield है इतना even नहीं है, फिर भी फील्डिंग का स्टैंडर्ड टॉप क्लास रहा है, कैचिंग का भी।
बैकवर्ड पॉइंट, गैप ढूंढा और बहुत बढ़िया तरीके से बाउंड्री टू एंड द ओवर. अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर कमिंग टू द क्लोज एंड ऑफ द 19th ओवर. 146 for 6 Bengal. बैटिंग कार्ड बहुत एक्सपेंसिव. 18 रन गए पिछले ओवर में अखिल के, और ये ओवर से थोड़ा सा मोमेंटम जो है मुझे लगता है कि अब बंगाल टाइगर्स की तरफ आ गया है. डोमिनेट किया था पहले 10-12 ओवर तेलुगु वॉरियर्स ने, पर जॉय और जीशु की जो साझेदारी हुई है उसने कमाल कर दिया. तो 4 छक्के लगे, और एकदम से देखिए T20 की ब्यूटी क्या है कि कैसे धीरे धीरे बदलता है वक्त और एक टीम दूसरी टीम के ऊपर आती है. और ये 18 रन ने जो मोमेंटम दिया है सैंडी की जबरदस्त बल्लेबाजी ने, और सुमन ने भी आके जो हिट लगाए हैं. तो अब बड़ा मजेदार मैच होने वाला है, क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स होल्डर होम टीम है. चलिए, डॉट बॉल विकेट का तो इतना महत्व नहीं है, एक डॉट बॉल हो गई. और मेरे साथ अजय है. अजय, क्या कहते हैं आप? जी हाँ मातुल, जैसे आपने कहा एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर है, कहीं ना कहीं फाइटिंग स्कोर है. वापस आई है बंगाल टाइगर्स की टीम एक बार फिर, पर ये एक और झटका लगता हुआ. देखिए किस प्रकार कॉटन बोल्ड किया है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा हाथ में जाता और कोई भी चूक नहीं की वहां पे. नंद किशोर ने एक बढ़िया कैच पकड़ा और सैंडी की एक अच्छी पारी समाप्त होती. 24 पे आउट हुए, 148 पे 7 बंगाल टाइगर्स. नए बैट्समैन मैंटी आए हैं जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, और पहली गेंद उठा के खेला. एक मौका हो सकता था, सीधा फील्डर के हाथ में गई. ऐसा लग रहा है बाहर से ही सेट होके आए हैं यार. ये असर होता है जब आपके खिलाड़ी जब खेल रहे हो, तो जो बाहर से आता है उसका जोश भी बड़ा होता है. ओह क्या बात है. ओ कैच हो जाता, तो कैच का तो नहीं, एक डॉट बॉल बन जाती. बढ़िया गेंद, स्लोअर वन, और बढ़िया फील्डिंग. एक एक रन के लिए लड़ाई चल रही है. अब 3 रन अब तक आए हैं इस ओवर में. 4 रन 4 गेंदों में, तो एक तरह का बोनस है फिर से, क्योंकि आपके पास जब 4 विकेट हो आखिरी ओवर में और आपने पहले ओवर में 18 रन बनाए हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-12 रन तो बनेंगे. जी हाँ, यहाँ पे उसी कारण तारीफ करनी होगी नंद किशोर की, जो कि अंतिम ओवर डाल रहे हैं. दूसरा ओवर है उनके कोटे का, औसत उनकी 12 की है, पर ये ओवर बहुत बढ़िया डाला है अभी तक. खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे लगातार बदलाव करते हुए अखिल फील्ड में, और फिर से आगे बढ़े, पर टाइमिंग सही बैठा नहीं मैंटी द्वारा. और जी हाँ, इरादे बिल्कुल स्पष्ट है उनके. क्या ये रनआउट है? यहाँ पे उंगली उठाते हुए सदानंद विश्वनाथ एकदम प्रभावित हुए, और एक और झटका लगता हुआ बंगाल टाइगर्स को. पर सोच सही थी, क्योंकि इस वक्त अगर रनआउट भी हो जाए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं. रनों की दरकार है, जितने रन आप बना ले उतना बेहतर है.
और शायद यही कारण था कि पहला रन तेज से लिया और दूसरे रन के लिए वापस आए, पर जो एम्पायर थे बहुत बढ़िया पोजीशन में वहां पे सदानंद विश्वनाथ, और बिल्कुल जो बल्ला है आप देखिए, जो लाइन है वो एम्पायर को बिलोंग करती है, तो अगर लाइन पे भी बल्ला होगा तो फर्क पड़ता नहीं, और यही कारण कि एकदम उंगली उठाई और एक और झटका बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है इस एंगल से कि वापस जाना होगा मैंटी को। आदर्श की बहुत ही बढ़िया थ्रो, 8वें विकेट का पतन होता हुआ बंगाल टाइगर्स 151 पे 8। अमिताभ आए हैं अब आखिरी बैट्समैन, बल्कि आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। सुमन जो आउट हुए थे 17 रन बना के, नंद किशोर महंगे साबित हुए हैं, पर ये ओवर काफी किफायती रहा है उनका। कभी भी आसान नहीं होता जब अंतिम ओवर आप डाल रहे हो, प्रेशर रहता है बतौर गेंदबाज। और मैंटी ही अब स्ट्राइक पे रहेंगे, थोड़ा सा चकमा देने का प्रयास, पर एक बार फिर गति में मिश्रण किया वहां पे नंद किशोर ने, और यहां पे एक रन और मिलता हुआ, तो अब इस इनिंग्स की आखिरी गेंद पे एक रन और जुड़ेगा और 20 निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं बंगाल टाइगर्स के लिए। 152 रन, 8 विकेट नुकसान पे बंगाल टाइगर्स। जो रन रेट है इस इनिंग्स का 7 से ऊपर। बीच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी जिशु और जॉय ने, पर उसके बाद कुछ विकेट्स बहुत जल्दी गिरे, पर अंत में भी कुछ अच्छे ओवर है बंगाल टाइगर्स के लिए, और वही कारण है कि यहां तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ा स्कोर नहीं कह सकते T20 में, पर एक फाइटिंग स्कोर जरूर है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बंगाल टाइगर्स को, अब फील्डिंग का सर उठाना होगा अगर इस मुकाबले बने रहना है, क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स होम टीम है, अपने समर्थकों के सामने खेल रही है, काफी सपोर्ट उनके सामने है, पर एक चीज है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत मजबूत है। पर फिलहाल बंगाल टाइगर्स की अगर बैटिंग की बात करें, 43 रन बनाए जॉय ने, थोड़े भाग्यशाली भी रहे, पर जिशु बहुत ही बेहतरीन पारी, 38 मात्र 16 गेंदों में, सैंडी ने 24 बनाए 20 गेंदों में, सुमन 17 रन नाके आउट हुए, 14 गेंदों का सामना किया, रन आउट हुए थे आदर्श द्वारा, और अंत में मैंटी और अमिताभ नाबाद रहे। तो 152 पे 8, 12 एक्स्ट्रास बंगाल टाइगर्स के लिए। गेंदबाजी के लिए काफी विकल्प थे कप्तान के पास। 3 विकेट लिए सचिन जोशी ने, जो कि स्टैंड आउट गेंदबाज थे। 1 विकेट मिली प्रिंस को, 1 तरुण को, 1 अखिल को और 1 नंद किशोर को। अगर इकॉनमी की बात करें, सबसे किफायती गेंदबाज रहे सचिन जोशी, 3 विकेट मात्र 15 रन देके अपने 4 निर्धारित ओवर में। तो टारगेट तेलुगु वॉरियर्स के लिए ये मुकाबला जीतने के लिए, जो उनका पहला मुकाबला है इस संस्करण का, 153 का, 7.65 रन प्रति ओवर के हिसाब से, और बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। कहीं ना जाइए,